Okay, hello everyone, good evening. As you already know that we are dealing with the chapter human reproduction, and from last few classes we are discussing particularly about female reproductive system, right? So what we discussed so far in female reproductive system, अभी तक हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई? तो प्राइमरीली हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ एक्सटर्नल जेनेटाइलिया और इंटरनल जेनेटाइलिया के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को, मतलब कुल मिला के हमने पढ़ा है व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स और यू कैन से कंपोनेंट्स दैट लाई एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल जेनेटाइलिया एंड external genitalia. We have not touched mammary glands yet. We will do it, but after this. Okay, after discussing everything in detail about external and internal genitalia, we will move towards mammary glands. Is it okay? So when we are discussing internal genitalia, हम जब internal genitalia को पढ़ रहे थे तो हमने फीमेल गोनैड्स ये नाम किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया था? ओवरीज के लिए। वो इसलिए क्योंकि मेल्स में टेस्टीज अगर स्पर्म बनाने का काम करती है, मतलब मेल गमेट बनाने का काम करती है, तो फीमेल्स में ओवरीज उनके लिए एग या ओव्यूम या फीमेल गमेट बनाने का काम करती है। दैट्स द रीजन वी कॉल ओवरीज एज फीमेल गोनैड्स, करेक्ट? तो फिर फीमेल गोनैड के बारे में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? सिर्फ बाहरी कि ovaries are present in pelvic cavity. They are on one side in contact with fimbriae part of the infundibulum of oviducts, and on other side they are connected to the wall of uterus by means of ovarian ligament, and on back side they are connected to posterior body wall by means of fold of peritoneum called mesovarium. सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमने देखी. But we need to study, as it is a female gonad, we need to discuss ovaries in complete detail as we did for testes. So that's what we are going to do today. Okay, we will describe ovaries in complete manner, including its internal structure or including its internal components. So when you look at the ovary, as we discussed earlier, ovaries are 2 in number. Each of it work alternately for the production of one egg per cycle. What cycle I am talking about? Menstrual cycle. Yes, we will also study menstrual cycle separately in complete details. Okay, in the same topic, that is female reproductive system, but not now. But you should know, you should be very clear about a fact that as males of humans, males produce millions of gametes per time. You know the number, average number of sperms present in a volume of semen that is ejaculated at once is around 200 to 300 million. So you can imagine how many are they. But it is not the case with female gamete. They are not produced in such a number. They are produced only one per cycle and alternately produced by each ovary, that is left and right. Okay, how it is we'll see. Okay, so this is what on the board, the structure you are observing is an section or TS you can say of female ovary or mammalian ovary, or you just say human females ovary. स्टैंडर्ड ओवरी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. इसमें आपको ब्रॉड तौर पे दिखेगा कि ये जो बाहर वाली रेड बाउंड्री है उसको हमने क्या नाम लिखा है? विसेरल पेरिटोनियम. इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मेसोडर्म. ओके, एज आई सेड yesterday also that our internal organs are covered by mesodermal layer. So ovaries on their surface are covered by visceral peritoneum that is shown as a red dotted line just for differentiating, while the black line
which is shown as a boundary of a ovary is a basement membrane. ये जो ब्लैक लाइन है, ये इसको नाम नहीं दिया है हमने, ये ब्लैक लाइन क्या है? नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर इपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो फिर अगर इसको हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा है तो इसके नीचे इपिथेलियम भी होना चाहिए, क्योंकि है। पर्टिकुलरली कौन सा इपिथेलियम है ये? जर्मिनल इपिथेलियम। देखो, जर्मिनल इपिथेलियम गोनाड्स में ही पाया जाता है। टेस्टिस में जर्मिनल इपिथेलियम था, कहाँ था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो टेस्टिस का ही हिस्सा है ना, राइट? उसी तरह से ओवरीज के अंदर भी कौन सा इपिथेलियम पाया जाता है? जर्मिनल इपिथेलियम। और इसको जर्मिनल इपिथेलियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रेजेंट सेल्स आगे जाकर जर्म सेल्स प्रोड्यूस करती है, मतलब गमिट्स प्रोड्यूस करती है आगे जाकर मतलब जब ये oogenesis की प्रोसेस के थ्रू एग्स प्रोड्यूस करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसकी शुरुआत कौन से सेल्स से होती है? जर्मिनल सेल्स से। तो जर्मिनल सेल्स जिन इपिथेलियम में पाए जाती है उस इपिथेलियम को हम जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। अब रहा सवाल सेल्स का, तो स्पर्म्स बनाने वाली जर्मिनल सेल्स को हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, राइट? बिकॉज दे वेयर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स इन फ्यूचर। तो यहां पे द वर्ड दैट वी आर यूजिंग फॉर द सेल्स ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ ओवरीज इज oogonial cells. Now why we are using the term oogonial cells here? Because in future they are going to produce ovum. Ovum is a alternate and technically correct terminology for female gamete, जिसको हम ovum की जगह egg भी कह सकते हैं। Is it okay? तो फीमेल गमेट ओव्यूम या एग बनाने की प्रक्रिया, जिसको हम oogenesis कहते हैं, वो कौन से सेल्स से शुरू होती है? इन सेल्स से, जिनका नाम है oogonal सेल्स। और वो जिस जर्मिनल इपिथेलियम में पाई जाती है वो जर्मिनल इपिथेलियम ओवरीज का हिस्सा है, और इसीलिए ओवरीज हुई फीमेल गोनाड्स। सिंपल, इज इट ओके? उसके बाद जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे पेरिफेरल पार्ट जो है ना ओवरी का, उस पेरिफेरल पार्ट को कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। एज आई सेड यस्टरडे ऑल्सो कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरीज इज सिंपली सेड टू बी ओवेरियन cortex, and all the developmental stages during oogenesis process will occur in this part of the ovary, ovarian cortex। ठीक है, और ओवेरियन स्ट्रोमा भी कहते हैं इसे कभी कभी, ठीक है ना। तो इस हिस्से में, या ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में तुमको एक्टिव प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। कौन सी प्रोसेस? oogenesis की प्रोसेस, मतलब एग बनने की प्रोसेस या ओव्यूम बनने की प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। किधर? इस पेरिफेरल पार्ट में। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे मेनली ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सप्लाइड होती है। एंड ये तो आपको पता ही है क्या है, दिस इज ओवेरियन लिगामेंट। ये हमने इंटरनल जेनेटाइलिया के डायग्राम में शो किया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है, राइट? तो दिस इज व्हाट द थिंग इज ओवरऑल, कि बाहर की कवरिंग लेयर है विसेरल पेरिटोनियम, खुद की इंटरनल फंक्शनल लेयर है जर्मिनल इपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ oogonal cells, peripheral part is called cortex, have a fluid that is called ovarian stroma, and the middle region is medulla, which is mainly supplied with blood vessels and nerves and all. Okay, now ये तो हुआ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसके अलावा भी हमको इधर बहुत कुछ दिख रहा है। जैसे हमने कौन कौन से नामों को कवर किया जो यहाँ लिखे हैं, उनमें से कॉर्टेक्स को, उसके बाद
विसेरल पेरिटोनियम को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को और जर्मिनल इपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ ऊगोनियल सेल्स को। ये जो बाकी नाम है जैसे प्राइमरी oocyte हो गया, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स हो गए, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकन्स, ये जो नाम है ये हमने इस डिस्कशन में कहीं नहीं आए, क्योंकि ये सारे नाम किस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं? ओव्यूम या फीमेल गमेट फॉर्मेशन की। मैंने आपको बताया था, इस चीज़ पे थोड़ा सा और एम्फेसिस दो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जितनी स्ट्रेट और सिंपल है उतनी स्ट्रेट और सिंपल प्रोसेस oogenesis की नहीं है। ठीक है, अब ये बात और बता दूं कि oogenesis को हम एज अ सेपरेट टॉपिक भी पढ़ने जाएंगे आगे जाकर, है ना। तो पूरा oogenesis तो यहाँ कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ oogenesis होते टाइम या oogenesis की प्रोसेस होते वक्त ओवरीज में किस तरह की चीज़ें दिखती है वो ज़रूर यहाँ पे दिखेगा। अब ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव मैनर में लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट में हमने एनलिस्ट की थी और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बोली थी, रेड कलर वाले इसमें जो लिखी थी, बाकी सब ब्लैक में लिखा था, एक ही पॉइंट रेड कलर में लिखा था। क्या था वो पॉइंट? रिकॉल करो। नो न्यू oogonal cells are added to the germinal epithelium of ovaries after birth of a female fetus। फिर से एक बार बोलूं, हिंदी में बोले अगर तो बच्ची पैदा होने के बाद, मतलब फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होने के बाद उस फीमेल की ओवरी में, उस फीमेल की मतलब मदर की नहीं, उस बच्चे की ओवरीज में नई oogonal सेल्स ऐड होना सीज हो जाता है। तो बर्थ के समय पे किसी फीमेल फीटस की ओवरीज में जितनी भी oogonal सेल्स होंगी वो उतनी ही रहेंगी। और ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेल्स में ऐसा नहीं होता। Spermatogonial cells are keep on adding to the germinal epithelium of seminiferous tubules up to the old age, but this is not the case with females. In female ovaries, no new means these cells, अगर ये किसी मैच्योर फीमेल की ओवरी है ऐसा हम मान के चले, तो इस ओवरी में जितनी भी oogonal सेल्स है वो कब से है? बर्थ से। बर्थ के समय पे जितनी थी उतनी ही है, नई ऐड नहीं होती। इज इट ओके? फिर बर्थ हो गया और बर्थ के समय पे उस फीमेल बच्चे के ओवरी में, जो कि ओवरीज भी फुल्ली डेवलप फॉर्म में नहीं होंगी क्योंकि जस्ट बर्थ हुआ है, तो उस रूडिमेंटरी ओवरीज मतलब नॉन डेवलप्ड ओवरीज में जितनी भी oogonal सेल्स है उन oogonal सेल्स से ही फ्यूचर में आगे जाके कौन बनते हैं? एग या फीमेल गमेट जितने भी बन सके। कौन सी प्रोसेस से? oogenesis की प्रोसेस से। ठीक है ना। कंपेयर करो, हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने कहा था कि ईच स्पर्मेटोगोनियल सेल फर्स्ट अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ए एंड बी। Now type A spermatogonia go on mitosis to add more spermatogonial cells, while type B spermatogonia give rise to sperms। तो उसमें नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया मेंटेन रहता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली बन रहे हैं। यहाँ पे एक बार अगर oogonal सेल oogenesis के लिए चली गई तो वो oogonal सेल रिप्लेस नहीं होती, क्योंकि नई oogonal सेल्स का ऐड होना ये बर्थ के समय पे ही बंद हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस। गेटिंग द थिंग? इज इट ओके? नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लिसन इट केयरफुली along with the observation. This is important. Okay? During development means after birth up to the puberty, each and every word that I am saying is a calculated, I have calculated it in my mind that what I have to say.
दैट्स वाई लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व अकॉर्डिंगली। आफ्टर बर्थ एंड अप टू द प्यूबर्टी, इसका मतलब क्या है बताओ तो? बर्थ के बाद और अडल्ट बनने से पहले, ये जो समय है 12, 13, 14 सालों का, इस दौरान कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है फीमेल की ओवरीज में? oogenesis की। मतलब क्या बनने की प्रक्रिया? मैच्योर फीमेल गमिट बनने की, मतलब एग या ओव्यूम बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इज इट ओके? और उसमें सबसे पहला स्टेप है कन्वर्शन ऑफ oogoneal cells, ये जो रेड में है, oogoneal cells into a cell called this thing. What is the name of a cell? Primary spermatocyte. Is it okay? This is stage 1. Okay, what is stage 1? Conversion of oogoneal cell, that is represented in red, into a cell called primary oocyte. You can just look the diagram of oogenesis in your book, you will experience this, कि पहली स्टेज जो है oogenesis की प्रोसेस का डायग्राम अगर देखना हो तो, कि पहली सेल जो oogenesis की प्रोसेस के दौरान बनती है वो कौन सी है? प्राइमरी oocyte. Is it okay? It is just like conversion of spermatogonial cell into primary spermatocyte. Right? Here is a conversion of oogoneal cell into primary oocyte. It is not division, it is just maturation. Means like oogoneal cell is diploid, primary oocyte is also a diploid cell. But in elaborate manner, the whole process of oogenesis will be covered under a separate heading. तो यहाँ पे ओवरीज का इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने के रेफरेंस में जितना ज़रूरी है मैं उतनी ही बात करूँगा, कि ड्यूरिंग मैचुरेशन, मीन्स ड्यूरिंग मैचुरेशन जब जब मैं बोलूँगा तब तब इसका रेफरेंस आएगा बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। ठीक है? और ये भी और एक बात क्लियर कर दूँ कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। हजारों oogoneal सेल्स एक साथ हजारों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट oocytes में कन्वर्ट होते हैं। वहाँ पे हजारों इस स्टेज के फॉलिकल्स होंगे, सैकड़ों इस स्टेज में होंगे, कुछ इस स्टेज में होंगे। तो ये एक एक निकाला है हमने, ओवरीज में ऐसे बहुत सारे होंगे। और हर मेनिस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कोई एक किस में कन्वर्ट होगा? इस वाले स्टेज में, मतलब जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। और वो अपने थ्रू क्या रिलीज कर देगा? एग को रिलीज कर देगा। उस एग को रिलीज करने की प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन। और जो बचा हुआ मास है सेल्स का, ये फिर आगे जाके एक बॉडी फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये हॉर्मोन्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें रेफरेंस आया है कि इसे येलो बॉडी कहते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट ल्यूटेन which is yellow in color. You know xanthophyll, lutein. Because of that its name is luteum. Okay, corpus luteum is called yellow body because it is having yellow pigment in it. This yellow body formation or corpus luteum formation then causes secretion of a hormone. If you remember, you can tell me now which hormone is secreted by yellow body or corpus luteum after it forms? बोलो बोलो, गलत ही होगा ना, और क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। येलो बॉडी और कॉर्पस ल्यूटियम secretes प्रोजेस्टेरॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CLH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नाम थोड़े से लॉजिक तुमको लगा सकते हो तुम अगर तुम नामों को ध्यान से पढ़ो। Luteinizing hormone regulates the formation and maintenance of corpus luteum. अब ये सब हार्मोनल रेगुलेशन भी हम नो डाउट पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने मेल के लिए पढ़ा।
उसी तरह का फ्लो चार्ट और सब कुछ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, तो तुमको हर चीज़ हर लेवल पे समझनी पड़ेगी। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कई सवाल आ रहे हो कि एग अगर बन रहा है तो बाकी के सेल्स की क्या ज़रूरत है जो इतनी सारी छोटी छोटी यहाँ बना रखी है, ब्लूबेरी रास्पबेरी जो भी। हाँ, तो इसका जवाब धीरे धीरे मिलेगा, ऐसे नहीं ना, हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और मैंने तुमको एक बात तो पहले ही क्लियर कर दी है कि मेल गमेट फॉर्मेशन जितनी सिंपल और स्ट्रेट प्रोसेस नहीं है, तो देयर मस्ट बी सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो वो देखेंगे हम वन बाय वन। अब कॉर्पस ल्यूटियम पे हम बाद में आते हैं, फिर से आएंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं ये बोल के कि इसका अलग नाम क्या है, येलो बॉडी, और इसका फॉर्मेशन और मेंटेनेंस किस हार्मोन के हाथ में है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसका खुद का काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है आगे जाके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आएगा, लेकिन फिलहाल हम जिस चीज़ के लिए इस डायग्राम को पढ़ रहे हैं उसको पूरा करते हैं, पर्पस को। तो पहली स्टेज क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है ना, प्राइमरी oocyte बनते ही मैंने एक बात पहले ही क्लियर कर दी है कि एक प्राइमरी oocyte नहीं बनता, ऐसे बहुत से बने होंगे। हम डायग्राम में एक शो कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेशन, राइट। उस प्राइमरी oocyte के अराउंड ओके बहुत सारी स्मॉल सेल्स ऐड होती है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। बीच में कौन है, बीच में ये चीज़ है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। तो बीच में प्राइमरी oocyte है और उसके सराउंडिंग में जो सेल्स है, इन सेल्स को मैं यहां बाजू में लिख देता हूं ताकि वहां कंफ्यूजन ना रहे। ग्रैन्युलोसा सेल्स, which cells start surrounding the primary oocyte, granulosa cells, okay, and granulosa cells form a single layer initially around primary oocyte, and now the primary oocyte is not just primary oocyte but now it is a follicle. Is it okay? जैसे ही प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में कौन सी सेल्स लेयर फॉर्म करती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स लेयर फॉर्म करती है, वो बन जाता है प्राइमरी oocyte से फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल की पहली स्टेज, दैट इज ओवरऑल अ सेकंड स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। इज इट ओके? अब आगे बहुत आसान हो जाती है चीजें, और ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स ऐड होती जाएंगी, ओके, और एक एडिशनल लेयर भी एग के अराउंड और ग्रैन्युलोसा सेल्स के नीचे बनती है। यहाँ ये देखो, तुमको ये हर बार दिखेगा, हर बार हमने डबल लेयर निकाली है, राइट। ये देखो यहाँ पे भी है। तो वो जो रेड, अभी जो मैंने रेड में मार्क की है, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स के नीचे और oocyte के ऊपर है, उसे कहते हैं। अब आगे जब हम ग्राफियन फॉलिकल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ही, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी फिर भी मैं रेफरेंस के तौर पे बता दे रहा हूँ, आगे जाके याद रहेगा तो अच्छा है। जोना पेलुसिडा, what is the name of a non-cellular layer that is formed around oocyte within ovarial follicles? Zona pellucida। तो ओवेरियल सब देखो, अंदर से बाहर अगर जाओगे तो सबसे बीच में होगा oocyte, जो अभी प्राइमरी स्टेज में है। मियोसिस होने के लिए वो सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, फिर वो सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। जैसे अभी इस ग्राफियन फॉलिकल में पाया जाने वाला जो स्टेज है वो सेकेंडरी oocyte होता है, इनिशियल स्टेजेस में वो प्राइमरी oocyte है। तो जब हम oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमारा फोकस सिर्फ oogoneal सेल और oocyte पे होगा, लेकिन हमको ये दिमाग में रखना होगा कि oogenesis के दौरान बाहर भी सेल्स ऐड हो रही है। इज इट ओके? oogenesis तो अंदर हो रहा है,
oocyte डेवलप हो रहा है ना, लेकिन बाहर भी कौन सी सेल्स ऐड हो रही है? ग्रैन्युलोसा सेल्स। मतलब जब स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें से किसी भी स्टेज पे इसके ऊपर कोई सेल्स ऐड नहीं होती। ये बिल्कुल प्योर प्रोसेस है, सीधी सीधी होने वाली। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो अंदर चलता रहेगा। यहाँ उसके बाहर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन सी लेयर्स ऑफ सेल्स ऐड हो रही है? ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो जब oocyte अपनी मैच्योर स्टेज की तरफ बढ़ता है तब फॉलिकल भी पैरेलली मैच्योर स्टेज की तरफ बढ़ता है, और जो रिलीज करने लायक oocyte होता है वो जिस स्टेज ऑफ फॉलिकल में पाया जाता है वो स्टेज है ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आई ना बात? तो इट्स अ पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ oocyte एज वेल एज फॉलिकल। गेटिंग द थिंग? थोड़ा थोड़ा, कंचम कंचम, तेलुगु में बोलते हैं ना, तो जो भी थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बट ये हम 2-3 बार पढ़ेंगे। सिलेबस के हिसाब से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है? और हम रिपीट तो करते ही हैं, तो वो समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन सिर्फ फोकस रहेगा तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड हुई तो ये बन गया फर्स्ट स्टेज फॉलिकल, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। और ज़्यादा लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड होंगी तो ये बनेगा सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी फॉलिकल। तो इसको हमने कुल मिला के नाम दे दिया डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स। भाई डेवलप हो रहा है से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ स्टेज में, और डेवलप होते होते उसमें आपको दिखेगा कि चेंजेस भी आए हैं। जैसे यहाँ पे 2 लेयर्स है, यहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बनी, ये कैविटी डेलिबरेटली बनाई है, और ये कैविटी आगे जाकर और प्रोमिनेंट बनी। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। इसको फॉलिकुलर एंट्रम कहते हैं इस कैविटी को, लेकिन इसकी चिंता नहीं, क्योंकि हम ग्राफियन फॉलिकल को सेपरेटली एज अ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हिटिंग द थिंग? तो वहाँ पे उसके सारे नाम आ जाएंगे कि ग्रैन्युलोसा सेल्स तो कुल मिला के इन सेल्स का नाम है, लेकिन ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर के भी अपने खुद के नाम हैं, इसके। तो ये सारे नामकरण किस में आएंगे? ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में आएंगे। समझ में आई ना बात? फिलहाल तो ये सब सेल्स कौन सी सेल्स है? ग्रैन्युलोसा सेल्स, जो सिक्रीटरी होती है। इज इट ओके? क्या सिक्रीट करती है? फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इज इट ओके? हाँ, फर्क ये है कि ये एस्ट्रोजन ज़्यादा और प्रोजेस्टेरॉन कम कब सिक्रीट करेंगी, और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा और एस्ट्रोजन कम कब सिक्रीट करेंगी। तो वो तो रेगुलेटरी पार्ट है जो रेगुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही समझेगा। लेकिन अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखना चाहो अभी तो खोल के देख सकते हो रेफरेंस के तौर पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम दिया है, उसमें देखो एक 14 दिन का एक टाइम वाला सेक्शन है, 14th डे वाला है, डे 14। डे 14 से पहले तुमको एक हार्मोन पीक पे दिखेगा, मतलब डे 14 से पहले एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन का कम है। डे 14 के बाद प्रोजेस्टेरॉन वाली लाइन ऊपर है और एस्ट्रोजन वाली नीचे है। तो ये सारा रेगुलेटेड मामला है ना, जो रेगुलेशन पढ़ेंगे तभी समझेगा। अभी तो तुम सिर्फ इतना समझो कि ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ओवेरियन फॉलिकल्स की, यही वो सेल्स है जो ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का काम करती है। अब वो कब एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करेंगी और कब प्रोजेस्टेरॉन, ये रेगुलेशन वाला मामला हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे ना। अभी इतने कच्चे नॉलेज में हम उसको नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा नॉलेज पक्का करते हैं फिर समझते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या नॉलेज पक्का हुआ तुम्हारा कि oogenesis के पैरेलल में फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी
चलती है, और oogenesis फॉलिकल्स के अंदर हो रहा है. इज इट ओके? और फॉलिकल्स क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द what you say granulosa cells surrounds the oocyte and successively they mature. So this is what you say developing ovarian follicles. और डेवलप होते 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 अब एनी गिवन पॉइंट पे अगर तुम ओवरी को देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो तुमको कुछ फॉलिकल्स ऐसे नजर आएंगे जो अपनी कौन सी स्टेज में है? प्राइमरी. कुछ ऐसे नजर आएंगे जो अपनी सेकेंडरी स्टेज में है, कुछ ऐसे होंगे जो टर्शरी में है, क्वार्टरनरी में, और एक ऐसा होगा जो रेडी है, एक ही, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. और ये एक को रेडी रखना और करना ये किसके हाथ में है? हॉर्मोन्स. ऑल दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फॉलिकल्स मैच्योर इज इन द हैंड्स ऑफ hormones, that is estrogen and progesterone levels manage this and supported by FSH and LH from anterior pituitary. तो ये सारा मामला ऐसा है कुल मिला के. लेकिन फाइनल बात क्या है? every menstrual cycle, at every menstrual cycle one ovarian follicle matures into Graafian follicle. I am saying a typical thing. टिपिकल मतलब जो नॉर्मल चीज है वो बोल रहा हूं मैं. एंड दिस ग्राफियन फॉलिकल देन एट अ प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी टिपिकली ऑन द 14th डे ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल. अब क्योंकि हम मेनिस्ट्रुअल साइकिल को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलूँगा. फिर भी अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो आपका हक है वो कि देख सकते हो. 14th डे ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल पे फिर से एक बात, टिपिकली नॉर्मली ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर से किसे रिलीज कर देता है? एग को रिलीज नहीं करता. ये भी कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में. ओवरीज में एग नहीं बनता. ओवरीज में फीमेल गमिट पूरी तरह से नहीं बन पाता. इसका सच क्या है ये हम ओव्यूलेशन की oogenesis की प्रोसेस में समझेंगे. तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा. इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं 100 बातें एक साथ समझाने जाऊंगा तो एक भी नहीं समझेगी. जो बातें बता रहा हूँ, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बता रहा हूँ, उस पर सोच ज़रूर सकते हो. अगर पता है तो जवाब भी खुद को ही दे सकते हो, मुझे तो दे नहीं सकते. कि ओवरीज से रिलीज होने वाली मतलब ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के थ्रू निकलने वाली चीज मैच्योर फीमेल गमिट नहीं होती. मैच्योर फीमेल गमिट किधर जाके बनता है? डिपोजिशन के बाद, मतलब मेल गमिट से फ्यूजन के बाद. लिटरली अगर मैं कहूं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऐसा कुछ होता है कि बिल्कुल थोड़े समय के लिए ओव्यूम बनता है, जिसको हम सही सेंस में ओव्यूम कहे. ओके, अब इसके पीछे की कहानी क्या है इसको हम पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन oogenesis की प्रोसेस में. अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के प्रक्रिया के थ्रू निकलने वाली चीज होती है सेकेंडरी oocyte. उसको होना क्या चाहिए? ओव्यूम. लेकिन होता वो क्या है? सेकेंडरी oocyte जो अपने मियोसिस 2 में लटका हुआ है. समझ में आई ना बात? मियोसिस कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों स्टेजेस कंप्लीट होना. लेकिन बिकॉज ऑफ सम इशू in what stage the oocyte is held? Meiosis 2. Okay, particularly metaphase 2 of meiosis 2. तो एनाफेज पूरा नहीं कर पाता, टीलोफेज पूरा नहीं कर पाता, वो बाद में जाके पूरा होता है. कहाँ? स्पर्म्स के साथ फ्यूजन के बाद. तो वैसा क्यों होता है इसका जवाब हम देखेंगे आगे जाकर. मतलब oogenesis की प्रोसेस में डिस्क्राइब करेंगे हम इसको कि वाई इट इज सो. बट एक बात याद रखना, समझो कि ग्राफियन फॉलिकल से मेनिस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन रिलीज होने वाली चीज मैच्योर फीमेल गमिट
नहीं होती। कौन से स्टेज में अटका हुआ फीमेल गमेट होता है? हाँ, मतलब सेकेंडरी oocyte स्टेज में, जो अपना मियोसिस 2 पूरा नहीं कर पाया है। इज इट ओके? और सिर्फ एग रिलीज होता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पे? अब एग बोलेंगे नहीं हम इसको, हालांकि बुक में लिखा होता है, बोलते टाइम भी हम बोल देते हैं, लेकिन ये एग नहीं है, ये क्या है? सेकेंडरी oocyte स्टेज है। और इसके सराउंडिंग में अभी भी तुमको क्या दिखेंगी? ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो देखो ये एक और फैक्टर है कि सिर्फ oocyte या एग बनाने वाली सेल नहीं निकलती ओव्यूलेशन से, बट ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर ज़ोना पेलुसिडा भी अपने साथ लेकर निकलती है। इज इट ओके? और यही कारण है कि मैंने तुमको स्पर्म पढ़ाते टाइम, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्म पढ़ाते टाइम एक्रोजोम का इंपॉर्टेंस बताया था कि एक्रोजोम which is made up of Golgi complex is a very important part of sperm as it helps in penetrating the layers present over the surface of egg। ये वो layers है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर और ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके एग तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो पेनिट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स वगैरह है वो एक्रोजोम से निकलते हैं स्पर्म के। तो हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ना कि स्टेप वाइज मैनर में समझ में आएंगी चीज़ें, हम उसको बहुत आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम ओवर थिंकिंग करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ओवर थिंकिंग तब करना जब आपने आगे की चीज़ पढ़ी है और आपको थोड़ी बहुत समझी है। अगर आगे की चीज़ नहीं पढ़ी और नहीं समझी है पढ़ के भी, तो ओवर थिंकिंग अभी करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इज इट ओके? अभी जितना समझा रहा उतना समझा। ओव्यूलेशन हो गया। कौन से दिन होता है ओव्यूलेशन? अब ये भी एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे फेजेस के हिसाब से याद होनी चाहिए, जो पढ़ने के बाद आशा करते हैं कि आपको याद रहेगी। अभी पढ़ी नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और ये भी बता दो, अब रेफरेंस आया ही है तो आजकल मैं ये भी बता दूँ, बहुत हो रहा है आज की क्लास में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन किसे माना जाएगा? ये भी तो क्वेश्चन है कि तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन किसे मानोगे? जिस दिन ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना? जिस दिन किसी फीमेल में पहला दिन, मतलब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तब की बात नहीं कर रहा मैं, हर महीने में आती है फीमेल्स में। तो जिस दिन ब्लीडिंग होती है, जिस दिन बोलते हैं कि आज MC आया है, इसको बहुत शर्मा के बोलते हैं, बहुत लोग बहुत छुपा के बोलते हैं, ठीक है? लगने वगने नहीं देते बहुत से घरों में, नहीं उधर मत लग, इसको मत छू, पता नहीं क्या है, जो भी है पूरा पागलपना है। ओके, तो ये जो बोलते हैं, या जिस दिन आती है पता नहीं क्या आती है, तो जिस दिन पाई आती है, हाँ, या जिस दिन MC शुरू होता है, या जिस दिन ब्लीडिंग होती है, जो होती चीज़ है वो होती है, नेचुरल है। तो वो पहला दिन, 4 दिन तक वो चलती है। तो 4 दिन तक लेडीज़ को बहुत से जगह पे छू नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है। और वो बेसिकली उसका लॉजिक ये है कि उसको काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लाइक क्रिटिकल पीरियड। तो उसको काम से बचाने के लिए पुराने ज़माने में ये सारे नियम निकाले गए थे कि भाई उसको ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े, वो थोड़ा सा शांति उसको मिले। लेकिन उसका गलत ही अर्थ निकाल लिया गया और वो सब मिक्स मार्क्स हो गया, उसको छोड़ो। हाँ, ये उसके पीछे का लॉजिक था एक्चुअली, कि उन 4 दिनों में उसको काम ना करना पड़े, ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े, जो भी है। तो वो जो पहला दिन है, उसके बाद 5 दिन कंसिडर किए जाते हैं बायोलॉजिकली। 5 दिन के बाद फिर से नई प्रक्रिया शुरू होती है, नया ग्राफियन फॉलिकल डेवलप कराने की, और वो डे 5 से डे 14 तक चलती है। और डे 14 पे ग्राफियन फॉलिकल अपना मेन काम कर देता है, मतलब ओव्यूलेशन का। अब डे 14 से डे 15, 16, 17 तक वेट करेगा एग कि स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है? बट वो तो यूजुअली हो नहीं सकता हर बार। तो फिर स्पर्म ना आने की वजह से एग डिजेनरेट हो जाता है अपने आप ही। स्पर्म की लाइफ, एग की लाइफ लिमिटेड है 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स।
उसके बाद ये जो भैया है बचे हुए कॉर्पस ल्यूटियम, ये खुद को डिजनरेट करना शुरू कर देते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, और ये खुद को डिजनरेट करके बना देते हैं एक वाइट कलर की बॉडी जिसको कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना कम हो जाएगा क्योंकि ये डिजनरेट हो गया जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था। प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम यूटेरस का पार्ट है, ये तो यूटेरस हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट एक बात ज़रूर बोलूँगा कि फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन ना होने की वजह से सब कुछ जो तैयारी की थी कि फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसको इम्प्लांट करना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर प्लानिंग से जो तैयारी हर महीने होती है यूटेरस में, वो सब तैयारी टूट जाती है और टूटा हुआ सब कचरा, डेब्रिस जिसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स और ब्लड के साथ फिर से रिलीज होता है। तो फिर से डे 1 आता है 28 दिन के बाद, 28 डे के बाद फिर से डे 1 ब्लीडिंग वाला। तो ये टिपिकल है। अब आपको भी पता है कि कंप्लीट 28 डे चले, ज़रूरी नहीं है ना, ये इधर उधर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से 2 दिन पहले 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा इरेगुलर भी होता है, बट हम बुक में जो बात पढ़ते हैं वो बहुत कॉपी बुक स्टाइल होती है, टिपिकल बात। तो टिपिकल क्वेश्चन ही आएगा तुमको, एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन क्यों आएगा? इज इट ओके? नेक्स्ट क्लास है क्या? अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब 2 मिनट हमको आगे जाके, ये तो ओवरी का स्ट्रक्चर हुआ, मैंने इसमें तुमको बाकी की भी बहुत सारी बातें समझा दी, वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो डायग्राम को निकालने का और पढ़ने का रेफरेंस था वो सिर्फ किससे था? ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझने से। अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, किसे? ग्राफियन फॉलिकल के पूरे डिटेल्ड स्ट्रक्चर को। ठीक, ये पढ़ने के बाद फिर हम फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं, यूटेरस में कुछ बोलेंगे हम, ठीक है, यूटेरस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फाइनली फिर हम आएंगे मैमरी ग्लैंड्स पे। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन, सॉरी फिर से ओव्यूलेशन ही बोलता हूँ मैं, oogenesis, मेनिस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल रेगुलेशन, डिसीजेस, ये हमारा रोड मैप रहेगा। इज इट ओके? सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।